Hello guys, KNOCKCAT this side. So today we are going to solve today's GFG POTD and it is closest neighbor in BST. So it says we are given a root of a binary search tree and a number n. We need to find the greatest number in the binary search tree such that it is less than or equals to n. So अगर मैं इन simple words बोलूँ, हमें हमारे BST में less than equals to n जितनी भी वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज में से जो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यूज होंगी ना, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करनी है. Find the greatest number in the binary search tree that is less than or equals to n. So less than equals to n or greatest. So given this is a binary search tree BST. कल का प्रॉब्लम भी BST के ऊपर था. So this problem also we are going to solve with the property of BST. But still I will discuss the naive approach. The naive approach would be like you can explore all these nodes. Like you can explore all these nodes one by one and check for the condition that if that value is less than equals to n, then our answer is equals to max of answer comma this root key. Okay, you can do any traversal. You can do pre-order, you can do in order, and you can do post order. Any traversal, you can traverse through all these nodes and you can check for this condition that if that key is less than equals to n, उस key में से मेरे को maximum दे दो. So this is a very trivial approach based on just tree traversal, and I have just discussed a naive overview. If you don't know the tree basic traversal, then first you should learn the basic tree traversal, then you should learn the BST. So trying solving this part using those traversal first. But if you are comfortable with that, or you've already solved using those traversal, then you can come up with BST. So actually, in the previous approach, you will check all the nodes, so the time complexity would be order of. But in BST, the time complexity, the average time complexity is always order of h height of L. And this is because due to the property of BST. So first come up like what is a BST? So a BST is a tree which has at most two children. At most means either 0, either 1 or 2. ज़्यादा से ज़्यादा दो चाइल्ड होते हैं जिसके. Left child should contain values less than the parent node and right child contain values greater than the parent node. What does that mean? Let's say if you are at a node here, then the values on the left side would be smaller than this current value, and the values in the greater side would be greater than this parent. So this is the exact same thing it is saying. Left child containing values less than the parent node. लेफ्ट की वैल्यू पेरेंट से कम होंगी हमेशा, और राइट की वैल्यूज राइट नोड की वैल्यू पेरेंट से ज़्यादा होंगी. तो इसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन भी है. तो अब देखो क्यों इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ ट्री होगी, क्योंकि लेट्स से इफ आई से यू that you need to find 7 in my BST. Let's say you need to find 7 in BST. And if you explore 5, you know that 5 is actually less than 7. 5 is actually less than 7. And since this is a BST, which tells that the nodes on the right side should be greater and the left side should be smaller, and you are looking for 7 and you are standing at 5, that shows that हमें right में जाना होगा. तो तुम right जाओगे और तुम 6 पे आओगे. अब तुम 6 पे जाओगे, 6 is still less than 7, that means you will look for right in the right. और जब तुम right पे जाओगे तुम्हें 7 मिल जाएगा. तो हम एक चीज नोटिस करेंगे, you will only traverse at worst the right subtree और द लेफ्ट सब ट्री. क्योंकि अगर हम तुम कोई वैल्यू ढूंढ रहे हो, अगर तुम कोई वैल्यू ढूंढ रहे हो, या तो पूरे लेफ्ट सब ट्री में कहीं मिलेगी या राइट में होगी, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन. पूरी नहीं हो सकता है कि नोट्स ऐसे हो, यहाँ पे ऐसे हो और फिर ऐसे हो. तो ओवरऑल जो हाइट ऑफ अ ट्री होगी ना, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी इस केस में, ये होगी क्योंकि मैक्सिमम है 3 4 है, तो हाइट ऑफ सब ट्री. दैट्स वाई BST की प्रॉपर्टी that values on the left side is smaller than the current node and on the right side is greater than the current node. So this is about BST. तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं. हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर इन द बाइनरी सर्च ट्री दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू.
less than and equals to n. So let's took this case is less than and equals to n. This is saying less than and equals to n. For this case, they want us to find like for 24, if I'm not wrong, 24, and for this case they are saying for 4. So BST 24, if you clearly see the values which is less than or equal to 24 are these values. These all values are actually less than or equal to 24, and 21 being the largest. So 21 is the answer for this. 21. And for this, if you can see, for 4, the values which are less than 4 are actually these, and 3 being the largest, so 3 would be the answer. So 21, 21, 21, and 4. So how to come up with this? So let's say I'm standing at currently at node. So 24, 24, and I know BST on right side there are greater nodes and left side smaller. So I will look for 24 or values which are equivalent to 24. So 24, I am standing at 5. So I know on the right there will be values. And we know since 5 is less than equal to 24, okay, so 5 is one of our possible answer, okay. And now I will move to right. Why? Because there is a possibility that 24 lies on the right side, and that is a property that BST claims that node on the right side are greater. तो 5 आंसर नहीं है, तो 5 से बड़ी वैल्यूज कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, राइट में करेंगी उसके. सो नाउ आई एम एट 12. I can clearly see 12 is less than 24. So that means I can update this with 12. Okay. Now 12 is still less than 24. That means, and we are looking for somehow close to 24. So अब 12 यहाँ पर है. 12 के लेफ्ट में तो हमेशा वैल्यूज छोटी होंगी, है ना. लेफ्ट में वैल्यूज छोटी होंगी, तो 12 will move to right in इस उम्मीद में कि उससे कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी या क्लोज वैल्यू मिलेगी. तो अब देखो 21, एंड वी कैन सी 21 इज लेस देन इक्वल टू 24. 21 is actually less than equals to 24. So that means this is the time I can update my answer to 21. अब मैं 21 को, तो अब वी आर लुकिंग फॉर 24. हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं 24 को. तो अब देखो 24 को ढूंढ रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगा कि 21 था ना, तो हम 21 मूव कर, तो 21 लेस देन इक्वल्स टू n था. ओके, तो इस स्टेप पे हम आगे बढ़ चुके होंगे. इस स्टेप पे हम आगे बढ़ चुके होंगे क्योंकि 21 इज द पॉसिबल आंसर. और अब क्योंकि 21 हमने आंसर ले लिया और 21 से लेफ्ट में तो छोटी वैल्यूज होंगी, तो हम राइट में मूव कर चुके होंगे. तो इस टाइप हम चेक कर रहे होंगे 25. हमें 25 मिला. सो क्या 25 लेस देन इक्वल टू 24 है? 25 इज नॉट लेस देन 24. एंड क्योंकि हम 25 पे आ चुके हैं और 25 का कोई लेफ्ट सेक्टर है नहीं. देखो 25 है ना, जो 21 25 से, तो मतलब 25 24 से बड़ा है. लेकिन देखो हम क्योंकि 21 हमारा आंसर था, अब हो सकता था कि लेफ्ट में कोई वैल्यूज होती, तो हम 25 से लेस में चेक कर सकते थे ना कि क्या 25 से छोटी वैल्यूज हैं या नहीं है. बट स्टिल देखो 25 है. अब मेरा 25 बड़ा हो चुका है मेरे 24 से, और हमारा आंसर 21 है. एंड अब कोई चीज इससे छोटी है नहीं मेरे पास. सो दैट्स व्हाई 21 इज द आंसर. थिंग्स विल गेट मोर क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. देखो अगेन मैं 5 पे हूँ यहाँ पे, एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर 4. तो 5 क्या बोलेगा मेरे को कि आई एम ऑलरेडी ग्रेटर. ठीक है, तो इस टाइप में मेरा आंसर स्टार्टिंग में -1 लेंगे. ठीक है, यहाँ भी -1 लेना चाहता. तो अभी पता है, अभी हम आंसर को अपडेट नहीं कर सकते. क्यों? 5 इज ग्रेटर. तो यहाँ देखो ना, यहाँ भी 25 ग्रेटर था. 25 ग्रेटर था, तो हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा, हम अपडेट नहीं कर सकते ना क्योंकि बड़ा है, और यहाँ पे तो आगे नोट्स थे भी नहीं, इसलिए. तो 5 है, इसका मतलब 5 बड़ा है. सो दिस टाइम आई शुड लुक एट माई लेफ्ट, क्योंकि मेरे को 4 चाहिए और 4 सबसे छोटा है. तो मेरे को 2 मिला. एंड 2 इज यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4. 2 इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 4. सो आई कैन अपडेट इट विद 2. अब हम 2 पे हैं, और कंडीशन क्या थी? यहाँ पर जब बोल रहे 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 4 से छोटा है, तो मतलब अब मैं छोटी वैल्यू पे हूँ और मेरे को बड़ी वैल्यू चाहिए. और अगर मेरे को बड़ी वैल्यू चाहिए, आई विल फाइंड एट माई राइट. मैं बोलूँगा राइट मूव कर, और मैं राइट मूव कर दूंगा उसको. सो ये आ जाएगा 3 पे. अब मैं चेक करूंगा, इज माई 3 लेस देन इक्वल टू 4?
एंड येस वी कैन क्लियरली सी 3 इज लेस देन 4, तो 2 हट के अपडेट हो जाएगा 3। अब 3 है। अब अगर मेरे को इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, सो आई शुड बी मूविंग। तो अब क्योंकि मेरे को 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूँगा राइट पे जा। क्योंकि मेरे को 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए ना, राइट पे जा। अब राइट में नल मिल गया, दैट मीन्स इससे अब बाहर कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल को लेते हैं। देखो ये एग्जांपल है, अगर मेरे को बोलते कि फाइंड अ वैल्यू विच इज 44 बोलते हैं, ठीक है 44। तो देखो मैं 40 पे होता, मैं बोलता यस 40 इज एक्चुअली, आंसर मेरा -1 होता, मैं बोलता यस 40 इज एक्चुअली लेस देन एंड 44, ठीक है। स्टेप्स लिखते रहते हैं, 40 इज लेस देन और इक्वल टू 44, सो आई वुड हैव अपडेटेड इट विद 40। एंड क्योंकि ये छोटा है एंड आई नीड, एंड मुझे बेटर वैल्यू चाहिए, तो इससे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी, सो आई वुड हैव मूव टू माई राइट 50। नाउ आई एम एट 50 एंड 50 would have claimed 50 would have claimed 50 क्या less than equals to 44 है, and this would have given me no, this is not, so this will say ये नहीं है, तो लेफ्ट में मूव करो, तो लेफ्ट में मूव करो, क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं हुई, हम लेफ्ट में मूव करें 45 पास फॉर्म में। नाउ इट सेज 45 आर यू लेस देन इज इक्वल्स टू माई 44, 45 आर यू लेस देन इक्वल्स टू 44, यू कैन क्लियरली सी 45 नहीं है, और क्योंकि 45 बड़ा हो गया, आई वुड हैव फाइंड समथिंग स्मॉलर वुड रिसाइड ऑन द लेफ्ट ऑफ माई BST। सो हम यहाँ से बोलते लेफ्ट मूव कर, और क्योंकि हम लेफ्ट मूव करते और हमें नल मिल जाता, so that's the end, that means 44 is that is 40 is the best we can get, 40 would be our answer, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं, लास्ट केस ले रहा हूँ, दिस टाइम हम बात करेंगे लेट्स से 35 लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में 40, 40 इज ग्रेटर देन, तो ये बोलता है 40 में बड़ा हूँ, तो मतलब मेरे लेफ्ट में एग्जिस्ट करता होगा। अब 30 है, 30 तो फॉलो कर रहा है, तो ये बोलता यस 30, और क्योंकि ये फॉलो कर रहा है, ये बोलता यस मैं तो फॉलो कर रहा हूँ और मुझसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं राइट मूव करूंगा, राइट मूव करा 35, 35 लेस देन 35 है, ये बोलता 35। अब क्योंकि 35 फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है राइट मूव करता है, क्यों, यहाँ तक सही है ना, यहाँ तक सही है, तो राइट मूव करता और राइट में डाल मिलता, तो 35 वुड बी आंसर। सो इन शॉर्ट, अगर वैल्यू, हमारा कोड क्या होगा, अगर तो रूट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे रूट एग्जिस्ट करता, तो हम बोलते देखो भाई कि अगर तो रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रूट एग्जिस्ट करता है, और देखा हमने ना बस ट्री की हाइट ट्रेवर्स करी, यहाँ देखो ट्री की हम हाइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, अभी दो दो स्टेप गए हम, ठीक है। यहाँ भी हमने, हमें 20 नहीं आता, तो हम यहाँ यहाँ तक गए थे बस, यहाँ भी देखो हम 3 तक गए, तो हमने ट्री की हाइट ट्रेवर्स करी और पूरी भी नहीं करी, मतलब वर्स्ट हम, अगर 25 होता तो हम वर्स्ट हमें इतना ट्रेवर्स करा होता, तो दिस इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ एच, और ये इन ऑर्डर ट्रेवर्स से बेटर है, क्यों, वहाँ हम हर एक नोट चेक कर रहे होते, तो एम एन नोट चेक कर रहे होते, ठीक है। तो सिंपल देखो कोड, देखो मैं बोला वाइल रूट है, अब मैंने बोला कि देखो अगर, अगर तो जो मेरे रूट है ना, रूट की मान लो, ठीक है, अगर मेरी रूट की लेस देन इक्वल्स टू एन है, अगर लेस देन एन है, इसका मतलब क्या है, ये एक पॉसिबल आंसर है, तो मैं क्या बोलता, ठीक है, आंसर को हम बोल देते रूट की, है ना, हम आंसर को बोलते रूट की बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, और क्योंकि ये पॉसिबल आंसर में मिल जाता, क्योंकि यहाँ हमें पॉसिबल आंसर मिलता, ये केस नहीं है वो, 60 मान लेते हैं, तो 40 लेस देन 60 हो रहा था, तो क्योंकि 40 लेस देन 60 हो रहा था, तो हम बोलते हाँ ये तो पॉसिबल आंसर है, तो हम अपडेट करते 40 से, तो हम 40 से अपडेट करते और आगे बढ़ जाते हैं 50 पे, तो आगे बढ़ते ना, क्योंकि 40 तक तो सही है, और अब हमें बड़ी वैल्यू चाहिए 40 से, तो हम बोलते हैं यस नाउ मेक माई रूट एज रूट राइट, तो हमने रूट को राइट मूव कर दिया, जब लेस देन एन था। अब आते हैं एल्स केस पे, तो एल्स केस क्या होता, एल्स केस बोलता 50, 50 था, तो अब मान लो 45 होता, ठीक है, 45 होता तो 40 तो मैच करता, 45 होता, 45 होता, तो 45 पे ये मैच 40 तो मैच करके होता, तो अब 45 पे ये बोलता 50, 50 के लेस देन इक्वल्स टू 1 है, 50 लेस देन नहीं है, तो इसका मतलब ही इज लुकिंग फॉर अ स्मॉलर वैल्यू, और स्मॉलर वैल्यू डिसाइड करती है लेफ्ट में, तो इसलिए अगर स्मॉलर वैल्यू है तो ये बोलता
रूट को मूव करा दो रूट के लेफ्ट में, और हम अपडेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू है ना, जब यही फॉलो नहीं कर रही है और हम बोल रहे हैं कि हमें छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं लेफ्ट में मूव करा और मैंने इसको अपडेट कर दिया। अगली बार ये चेक करता 45 से, तो क्या 45 लेस देन इक्वल टू 45 है? और होता, ये बोलता ठीक है आई एम फाइन, ये अपडेट करता और राइट मूव करता, राइट मूव करता नन, तो रूट होता ही नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जैक्ट कोड दैट वी नीड टू राइट, एंड हियर वी कैन जस्ट से रिटर्न आर आंसर। सो सिंपल स्टेप्स थे, दो स्टेप हैं। अगर फॉलो कर रहा है तो हम रूट को अपडेट करेंगे। तो स्टेप्स क्या होने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। स्टेप्स ये होने वाले कि देखो इफ फॉलोज कर रहा है, देखो इफ वो फॉलो कर रहा है तो मैं बोलूँगा अपडेट आंसर एंड मूव टू राइट, ठीक है। और एल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये करंट वैल्यू फॉलो नहीं कर रही है, हमें इससे छोटी वैल्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे मूव टू लेफ्ट टू मूव टू लेफ्ट मूव टू लेफ्ट ऑफ। तो ये हमारे होने वाले स्टेप्स, ठीक है, अगर फॉलो कर रहा है। तो हमने पहले आंसर ले लिया -1, ठीक है। अब मैंने सिंपल बोला कि जब तक मेरा रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हमने कि अगर तो जो रूट की है ना वो लेस देन इक्वल्स टू n है, तो इस टाइम पे यू कैन अपडेट, मतलब ये तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि अब वो आंसर था लेकिन मैं बेटर ढूंढ रहा हूँ, तो राइट, तो रूट को राइट मूव कर दो। इतना सा फॉलो कर रहा है, इतना तो फॉलो कर रहा है, तो अब बड़ी वैल्यू के चेक कर ले, ठीक है। और अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो जस्ट से रूट इज इक्वल टू रूट लेफ्ट टू फाइंड स्मॉलर, दैट्स इट। अगर फॉलो करो तो अपडेट करेंगे और राइट मूव कर देंगे, फॉलो नहीं कर रहा है तो उससे छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए लेफ्ट मूव करेंगे, एंड दैट इज यहाँ से बोल देंगे रिटर्न आंसर। एंड जस्ट आई विल रन दिस, run, okay, we are getting some error, what is saying that error expected, okay, so one termination, okay, here also I missed. So this is, let's make it submit. So this is working fine. So that's all. The time complexity would be, have already discussed. It would be order of height of tree, and since we are not using any extra space, this will be order of 1. So this I have already discussed. So that's all about the video, and I hope you get to learn what is BST and how you are simulating the property of moving left and right and manipulating or writing conditions on the basis of that, so that you can get the less than or equal to n value, closest value. So that's all, and knock at this side.